So as we were discussing yesterday about the ordinary bill, and in that we were at the stage of third stage, sorry, the fourth stage, where the bill comes in the second house. So when the Lok Sabha discusses the bill, refers the bill into the select of the joint committee, study the recommendations of the committee, discuss on that, vote on that, and then we have the fourth stage, that is where the bill is referred to the second house. अब इस हाउस के पास भी यानी राज्यसभा के पास भी सारे वही के वही ऑप्शन होते हैं कि किस तरीके से फर्स्ट रीडिंग करे, सेकंड रीडिंग करे, थर्ड रीडिंग करे। तो यहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, सब कुछ करने के बाद नंबर वन, दे पास द बिल इन द ओरिजिनल फॉर्म। नंबर टू, they pass the bill with amendments and return that bill for to the Lok Sabha so that the recommendations which they are saying Lok Sabha should incorporate them into the law. Number third, they reject the bill. And number four, they do not take any action, which simply means keeping just pending the bill. तो अगर पास कर दिया तो बिल पास हो गया, राष्ट्रपति जी के पास जाएगा। रिजेक्ट कर दिया तो दोबारा से बनाना पड़ेगा। अगर रिकमेंडेशन दी हैं दूसरे हाउस को तो वो उनको रिकंसिडर भी करेंगे। So here comes one important thing, that if the first house reject the amendment given by the Rajya Sabha, and if the Rajya Sabha rejects the bill and take that bill under their pocket, which simply means keeping pending that bill for more than 6 months, in all these three conditions, it is appeared that there is a deadlock between both the houses. And to remove this deadlock, we have the provision of joint sitting under Article 108, where the President of India summons both the houses to collectively sit and to decide and to give vote on a particular bill, that is the ordinary bill, which is also one of the mechanism where the president is considered as the important and the integral part of the parliament. And in the joint sitting, most of the bills we can say that are passed, the reason being, in the Lok Sabha, the majority is of the central government, and the Lok Sabha is also having larger number. So when the collective parliament gives their vote, so Lok Sabha has more number of persons, so automatically the bill get passed. Now after this stage, the bill reaches out to the president office when both the houses have passed, either singly or by the joint sitting. Now the president of India has three options. Number one, he gives assent to that bill and वो भारत के राजपत्र पे छपने चला जाता है। दूसरा, वो मना कर दे, जिसको बोला जाता है विदहोल्ड असेंट। तीसरा, वो रिटर्न कर रहे हैं रिकंसिडरेशन के लिए, जैसे राज्यसभा ने किया था, तो प्रेसिडेंट भी रिकंसिडरेशन करने के लिए बोल रहे हैं। अगर वो रिकंसिडरेशन करने के लिए बोल रहे हैं और जब दोनों हाउसेस ने रिकंसिडर करने के बाद दोबारा से वो प्रेसिडेंट साहब को बिल दिया है, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी ही नहीं है, यहाँ पर प्रेसिडेंट के लिए निषेध है कि आपको किसी भी कोर्स पर उस बिल को साइन करना ही पड़ेगा। ना तो आप मना करोगे, ना आप दोबारा भेजोगे रिकंसिडरेशन करने के लिए। और इसी के लिए बोला जाता है कि द प्रेसिडेंट एंजॉयज सस्पेंसिव वीटो, नॉट द एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो के अंदर यही है कि 2/3 मेजोरिटी से पास करके वो भेज रहे हैं कि आप सिंपल मेजोरिटी से नहीं मानेंगे, आपके लिए हम 2/3 मेजोरिटी अपनाते हैं। तो पार्लियामेंट को ऐसा नहीं अलाउड। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना केवल पार्ट है पार्लियामेंट के, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटेटिव है आपके रिपब्लिक के। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हेड है आपकी सर्विसेज स्टेट के। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एक सैंक्टिटी है, एक प्रेस्टीज है उनकी, उनके ऑफिस की एक रिस्पेक्ट है। अगर आप उनको अपनी स्पेशल मेजोरिटी से डराएंगे तो उनकी इमेज खराब हो जाएगी। एंड दैट इज द रीजन बिकॉज ऑफ विच वी डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ वीटो विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आफ्टर दिस, if we talk about money bill, so please scroll the screen over the money bill. Yes.
So money bill is a part of Article 110. Article 110 of the Constitution lays out the definitions of the money bill. So we can say that a money bill is defined in the Constitution. Not every bill, but what type of bill will constitute money bill, that is clearly defined in the Constitution, and the Speaker of Lok Sabha has the sole power over the money bill. अब मनी बिल क्या होता है? पहला, अगर ये किसी टैक्स को बढ़ाए, घटाए, कम करे, किसी को रेगुलेट करने की बात करे, तो वो मनी बिल माना जाता है। अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बोरोइंग बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल को रेगुलेट करने की बात करे, कम करने की बात करे, तो ये मनी बिल हो जाता है। इसके बाद आप कंसोलिडेटेड फंड में से, कंटिजेंसी फंड में से, कंसोलिडेटेड फंड यानी आर्टिकल 266, कंटिजेंसी यानी आर्टिकल 267, इनके अंदर से पैसा लेने की अगर बात करें या पैसा डालने की बात करें, तो वो मनी बिल हो गया। आप कंसोलिडेट फंड के अंदर से पैसा किस तरीके से निकालेंगे, ये भी एक मनी बिल है। उसके बाद आप जो भी फंडों के अंदर से पैसा लाते हैं, कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे यूज करेंगे, कितना एक्सपेंडिचर रिवेन्यू के हिसाब से लगाएंगे, इन सारी चीजों की चर्चा करने वाला बिल भी मनी बिल होगा। अंडर आर्टिकल 12 के अंदर जितने भी स्टेट के पार्ट है, सब पार्ट है, कंपोनेंट है, उनका जितना पैसे से रिलेटेड मैटर होगा, वो सारा मनी बिल से रिलेटेड होगा। अब कौन से ऐसे बिल है जो मनी बिल नहीं हो सकते, जिनमें पैसों की बात तो होगी लेकिन तब भी मनी बिल नहीं? पहला, अगर आप फाइन या पेनल्टी लगाने की बात करें, क्योंकि मनी बिल का लेना देना टैक्सेशन से है, पेनल्टी से नहीं है, फीस से नहीं है, फाइन से नहीं। दूसरा, आप वैष्णो देवी मंदिर, तिरुमला, तिरुपति देवी, तिरुपति टेम्पल, कैलाशनाथ टेम्पल, एलोरा टेम्पल, इनके ऊपर सरकार जो है फाइन कलेक्ट करती है, फीस कलेक्ट करती है। लेकिन सारे ही जो टेम्पल हैं, अगर वो बोले कि हमारा जो है फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म होना चाहिए फाइन कलेक्शन का बाय द गवर्नमेंट, तो ऐसा अगर कोई कानून लाए तो क्या वो मनी बिल होगा? नो, बिकॉज दैट इज टॉकिंग अबाउट द फीस फॉर द सर्विसेज विच आर नॉट द पार्ट ऑफ स्टेट, तो वो भी मनी बिल का पार्ट नहीं होंगे। परवेश, एक ये था फाइन लेते हो, फाइन कलेक्शन होता है, फिर कुछ और वर्ड है? फाइन कलेक्शन होता है, फाइन या फीस कलेक्शन, पेनल्टी। पेनल्टी को क्या बोलोगे आप? फाइन बोलते हो। फीस को क्या बोलते हो? मतलब फीस बोलते हो। पेनल्टी, फाइन, फीस। मंदिर से कहाँ पेनल्टी लगती है? अरे मंदिर पे पेनल्टी नहीं लगती, मंदिर पे फाइन लगती, मंदिर पे फीस ली जाती है ना मंदिर से। हाँ, तो जैसे, फाइन नहीं होगा ना? अरे फाइन नहीं होगा, चलो आई टेक माई वर्ड बैक, फीस होगा। इससे तो एग्री करते हो आप? ओके। इसके अलावा जो लोकल अथॉरिटीज होती हैं, जैसे कि मान लीजिए आपकी म्यूनिसिपैलिटी, आपकी पंचायत है, इनसे रिलेटेड जो भी मैटर होंगे, इनके पैसों से रिलेटेड, इनके टैक्स से भी रिलेटेड, वो भी मनी बिल का पार्ट नहीं होंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सचिन जी, जैसे आप अगर एग्जांपल लें प्रोमिनेंट टेम्पल्स में, तो हम एग्जांपल लेते हैं वैष्णो देवी टेम्पल का। तो वैष्णो देवी टेम्पल पे जो आपको टैप वाटर सप्लाई मिलता है, पहाड़ों के ऊपर जो सड़क बन रही है, वहां पे टैप वाटर सप्लाई आपको मिल रही है। उसके ऊपर जो वहां पर सैनिटेशन करने वाले लोग हैं, उसके ऊपर जो मंदिरों के पुजारी हैं, उनको जितनी भी सैलरी हो गए, उनके पर्क्स हो गए, वो कहाँ से दे? सरकार की तो जिम्मेदारी नहीं है। और मंदिर में जो पुजारी बैठे हैं, उनको अपना देखना है, तो वो इनको कैसे दें? तो सरकार क्या कर रही है? सरकार ये कह रही है कि सबको जीने का भी अधिकार है, सबको कमाने का भी अधिकार है। तो आप जो वहां पर जा रहे हैं, आप पर्ची कटवाते हैं, पार्किंग की भी पर्ची कटती है, तो वो क्या है? पार्किंग की पर्ची, दैट वो टैक्स नहीं है, वो फीस है। इन सारे पैसों से, ये जो फीस हो गई, फाइन हो गई, पेनल्टीज हो गई, आपने कहीं पर कूड़ा फेंक दिया, आपका चालान काट दिया, वो पेनल्टी हो गई आपकी। तो इन सारे ही पैसों से उन लोगों का भरण पोषण होता है।
तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो चीजें टैक्सेशन से रिलेटेड नहीं है। टैक्स तो तब होता है जब बोलते हैं कि आप जाएंगे तो आपको 1,000 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा वहां जाने के लिए, तब वो टैक्स होता। तो इसीलिए वो सारी चीजें मनी बिल का पार्ट नहीं है। और एमसीडी और पंचायत, ग्राम सभा या फिर ट्राइबल काउंसिल, जितनी भी लोकल बॉडीज से टैक्सेशन मैटर है, दे आर आल्सो नॉट द पार्ट ऑफ मनी बिल। यहाँ पर हमने देखा कि जो स्पीकर होते हैं उनका डिसीजन फाइनल होता है। एंड अगेन आई एम रिटरेटिंग द सेम थिंग, दैट द डिसीजन ऑफ द स्पीकर इज इम्यून फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू बाय द सुप्रीम कोर्ट। इवन आप सुप्रीम कोर्ट हो, आप हाई कोर्ट हो, आप कुछ भी हो, आप स्पीकर के ऊपर ये नहीं बोल सकते कि मनी बिल आपने कैसे डिक्लेयर कर दिया, हम इंक्वायर करेंगे, नहीं कर सकते। इट इज अ सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पीकर, कैन नॉट बी क्वेश्चन। इसके प्रवेश, बाद मनी बिल, प्रवेश जो यहाँ पे मैकेनिज्म है ऑफ डिसाइडिंग और टर्मिंग अ बिल एज अ मनी बिल, उसको तो जुडिशियली रिव्यू किया जा सकता है ना, डिसीजन को नहीं कर सकते, बट जो उसके पीछे प्रोसेस था, रीजंस थे, उसको तो कर सकते हैं। उसको कर सकते होंगे, लेकिन जो डिसीजन ऑफ द स्पीकर है दैट इज दिस इज व्हाट आई कैन से एट द मोमेंट। So when the decision is given by the speaker, what he does, he signs that this is a money bill. He writes over that bill that this is a money bill, and that bill reaches out to the Rajya Sabha for the recommendation, and then to the president for his answer. तो मनी बिल का प्रोसीजर क्या होता है? मनी बिल का प्रोसीजर ये होता है कि ये लोकसभा के अंदर ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, आप राज्यसभा के अंदर नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते। और जब आप इसको इंट्रोड्यूस भी कर रहे हैं तो पहले आप जाकर प्रेसिडेंट ऑफिस से परमिशन लेकर आइए कि हम लोकसभा के अंदर मनी बिल लाने जा रहे हैं, जिसको बोला जाता है रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द मनी बिल। एंड जो भी मनी बिल होगा उसके लिए एक चीज और बताई गई है कि इट विल बी कंसिडर्ड एज अ पब्लिक बिल, गवर्नमेंट बिल, विच सिंपली मीन्स दैट ओनली ए मिनिस्टर कैन इंट्रोड्यूस दिस बिल इन द लोकसभा। इसके बाद जब राज्यसभा में जा भी रहा है तो राज्यसभा के पास जो पावर्स हैं वो बहुत लिमिटेड है एज फार एज ए मनी बिल इज कंसर्न। हाउ सो? In the ordinary bill, they have number of options. They can keep that in their pocket and not take the decision. They can make that pending. They can reject that. But here, the constitutional convention is that within the 14 days time period, you have to return back the money bill by giving the assent. You cannot reject that bill. You cannot take that bill into the pending for more than 14 days. And in case you are doing so, then automatically Lok Sabha will say, you just have that copy and enjoy with that copy, because already the copy which we have in the Lok Sabha of the money bill, that is passed. Now this is something, an upper hand of the Lok Sabha, where even the bill is pending in the Rajya Sabha, that is the money bill, that will not be considered as a pending after 14 days. That will be considered as a pass. And if the Rajya Sabha before the 14 days suggests to Lok Sabha that we are the Supreme House, we are having the people who are more specialized in our field, we are also having the nominated representation who are coming from various expertise, we have this recommendation, so as we should incorporate it into the money bill. Then it is the discretion of the Lok Sabha to accept or not those recommendations. It can simply sway away those recommendations, or it can accept those recommendations, one or two or the maximum also. अगर वो उनको एक्सेप्ट कर लेती है तो मॉडिफाइड फॉर्म में मनी बिल पास हुआ, नहीं करती है तो ओरिजिनल फॉर्म में बिल पास हुआ, एंड देन इट रीचेज आउट टू द प्रेसिडेंट ऑफिस। So after that, president is only having one option, that is either to give assent or to withhold assent, but he will not at any cost return the bill. Now why? Because at the time of introduction, the copy was already there. Why you didn't study at that time? Why you are now returning the bill? So you can't return that bill. You have to give the assent. But why the provision is there? Withhold. मना क्यों कर रहे हैं अब? पहले तो उनकी इंट्रोडक्शन से आया था, तो मना इसलिए कर सकते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल,
If the time of the introduction of the bill, the minister presented only the half kind of details to the president that this kind of bill we are going to introduce into the Lok Sabha and it will come to you with this pass. But the president secretariat and the president office considers that the original bill which the minister produced to the president, sir, now it is curtailing the rights of the high courts, of the Supreme Court. Now it is curtailing the financial sanctity of the important constitutional offices. So in all those cases, the president can withhold his assent to the money bill, and in other cases also, which are defined under the president's office money bill charter. Now, if we look out as to what the financial bills are, because in money bills we have all these things. So money bills are of two kinds. Sorry, financial bills. One is under Article 117, Clause 1, and one comes under the category of Clause 3, that is 1171, 1173. If we understand in a layman approach, so we can say that सभी के सभी जो मनी बिल होते हैं वो फाइनेंशियल बिल तो होंगे ही होंगे. If a question appears in the prelims, that reasoning and assertion, all money bills are financial bills, so the answer will be yes. हर मनी बिल पैसे से रिलेटेड तो है ही, तो फाइनेंशियल बिल तो हुआ ही हुआ, लेकिन सारे के सारे फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं होते. दिस इज द थिन लाइन आउट ऑफ इट, क्योंकि मनी बिल सिर्फ वही होंगे जो आर्टिकल 110 के अंदर भी मेंशन होंगे, जिनके प्रोविजन वहां से भी लिए गए होंगे, जिनके ऊपर स्पीकर जो है अपना रिटर्न असेंट देंगे कि मैं इसको बोल रहा हूँ ये मनी बिल ही है. तो फाइनेंशियल बिल 1 के अंदर किस किस तरीके के बिल आ सकते हैं, या फिर क्या उसके प्रोविजन होते हैं. तो जो आर्टिकल 110 के अंदर मैटर्स होते हैं, फाइनेंशियल बिल 1 के अंदर वो भी होंगे, क्योंकि अभी हमने देखा कि मनी बिल फाइनेंशियल बिल होता है, लेकिन फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं हो सकता. तो कुछ ऐसे मैटर जो आर्टिकल 110 में नहीं है, या फिर कुछ है. तो फाइनेंशियल बिल 1 के अंदर हमने देखा कि ऐसे मैटर्स भी आ सकते हैं जो अंडर आर्टिकल 110 के अंदर, और ऐसे मैटर्स भी आ सकते हैं जो आर्टिकल 110 के अंदर नहीं है, लेकिन उनका लेना देना पैसों से है, तो फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड. एग्जाम्पल, अगर कोई बिल ये बात कर रहा है कि आपको पैसा कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, कौन से सोर्स से लेना है, लेकिन कोई ऐसा बिल है जो आपको लोन से रिलेटेड मामला नहीं कह रहा है, यानी आपको क्रेडिट से रिलेटेड कुछ भी ऐसा प्रावधान नहीं बता रहा है, या आपको कहाँ से बोरोइंग करनी है इस तरीके का आपको नहीं बता रहा है, तो वो सारे मैटर्स आप फाइनेंशियल बिल 1 के अंदर लीजिए. क्योंकि मनी बिल के अंदर तो स्पेसिफिक आप बोरोइंग के मैटर्स भी लेते हैं, इंटरनल बोरोइंग भी, एक्सटर्नल बोरोइंग, लेकिन यहाँ पर बोरोइंग का कोई लेना देना नहीं. तो यहाँ पर भी जो फाइनेंशियल बिल 1 है वो लोकसभा के अंदर ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो यहाँ पर मनी बिल से इसकी सिमिलैरिटी एक हुई. दूसरी सिमिलैरिटी क्या है कि ये भी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के ऊपर ही आप लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन इसके अलावा कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है मनी बिल और फाइनेंशियल बिल 1 के अंदर. क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना तो स्पीकर उसको असेंट कर रहे हैं, ना राज्यसभा के ऊपर 14 दिन की लिमिटेशन है, ना राज्यसभा के ऊपर ये लिमिटेशन है कि आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, आपकी रिकमेंडेशन मानी नहीं जाएगी. सारी की सारी जो रीडिंग की स्टेजेस है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, जिसमें कमेटी को दोगे डिस्कस करने के लिए, कमेटी की रिकमेंडेशन को खुद डिस्कस करोगे, वोट डालोगे, सारे काम इक्वली एप्लीकेबल है जैसे ऑर्डिनरी बिल के ऊपर होते हैं. यानी राज्यसभा अगर चाहे तो कितने भी दिन के लिए पेंडिंग रखे, रिजेक्ट भी कर दे, रिकमेंडेशन भी दे दे और मानने भी पड़ेंगे. अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता है दोनों हाउसेस के बीच में, तो यहाँ पर प्रावधान भी है कि आप ज्वाइंट सिटिंग बैठा सकते. तो प्रेसिडेंट कैन समन अ ज्वाइंट सिटिंग टू रिजॉल्व द डेडलॉक ऑन फाइनेंशियल बिल क्लोज 1. और जब प्रेसिडेंट साहब के पास जाता है तो वो सारे काम कर सकते हैं, उसको असेंट भी दे सकते हैं, विदहोल्ड भी कर सकते हैं, रिकमेंडेशन के लिए भी भेज सकते हैं,
और कितने भी दिन के लिए इसको अपनी पॉकेट में डालकर भूल भी सकते हैं। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल बिल क्लोज 2 की। तो इसके अंदर कौन से मैटर्स आते हैं? इसके अंदर अब मैटर्स वो हैं जिनका लेना देना कंसोलिडेटेड फंड से है। यानी आप कंसोलिडेटेड फंड के अंदर से जितना पैसा उठाकर लाए, आपने कहाँ कहाँ पर एक्सपेंडिचर किया, कितना कितना किया, कैसे कैसे। लेकिन आर्टिकल 100 के अंदर जो मैटर आपने कंसोलिडेटेड फंड के किए, उससे अगर थोड़ा सा भी अलग है तो वो मैटर इसके अंदर आएगा। अगर इक्वल सेम है तो नहीं आएगा, तो मनी बिल माना जाएगा। ये भी एक ऑर्डिनरी बिल माना जाएगा, जैसे कि फाइनेंशियल बिल क्लोज 1 है। इसका सिर्फ एक ही स्पेशल फीचर है कि इंट्रोडक्शन के टाइम पर आपको प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नहीं थी, लेकिन जब आप इसको कंसीडर करने चलेंगे, जब इसके ऊपर डिस्कशन होगा, तब आपको प्रेसिडेंट साहब से परमिशन लेकर आनी पड़ेगी कि हम इसके ऊपर काम कंसीडर करना चाहते हैं, आप हमें परमिशन दें। किसी भी हाउस के अंदर आप इसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, विदाउट रिकमेंडेशन करवा सकते हैं, और दोनों ही हाउस इसको हर स्टेज से पास करेंगे, और ज्वाइंट सिटिंग भी बैठेगी अगर डेडलॉक आ जाए। और प्रेसिडेंट के पास भी सारे ऑप्शन है कि मना करे, हाँ कर दे, दोबारा पढ़ने के लिए भेज दे, या फिर पॉकेट में डाल। So this is all about the financial bill and the money bill. Divya, please scroll on the first page. No, up अगर पीछे पहले वाले पेज पे। So money bill, yes. So we have seen the money bill, financial bill, and अगर हम अब बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अंदर हमने देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, करो आप नीचे स्क्रॉल। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ऐसे बिल होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो 1 वर्ड का हो, चाहे वो 200 वर्ड का। दोनों हाउसेस के पास बराबर की पावर होती है। इसके बाद जॉइंट सिटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के ऊपर नहीं होती। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का जो प्रोविजन है वो हमारे आर्टिकल 368 के अंदर डिफाइन है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जब आप लाते हैं तो आपको दोनों हाउसेस के अंदर उसको स्पेशल मेजोरिटी के साथ, दैट इज 2/3 ऑफ मेजोरिटी से पास कराना होता है। और प्रेसिडेंट साहब जो है उनके पास वो बिल जाता है, जिसके बाद वो अपना असेंट देते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो जाता है। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज आल्सो सब्जेक्टेड टू वेरियस जुडिशियल नॉर्म्स, दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस। इसके बाद अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को मनी बिल से कंपेयर करें या फाइनेंशियल बिल से कंपेयर करें, तो हम देखेंगे कि जो जॉइंट सिटिंग है, प्रेसिडेंट कैन समन जॉइंट सिटिंग ऑन ऑर्डिनरी बिल, on financial bills but not on money bill, and the constitutional amendment bill के ऊपर भी there is no joint sitting। तो केवल 2 ही इस तरीके के बिल हैं जिनके ऊपर जॉइंट सिटिंग नहीं होती है, दैट इज द मनी बिल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। बाकी हर बिल के ऊपर जॉइंट सिटिंग होती है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एक ऐसा बिल है जिसके लिए बताया गया कि 2/3 मेजोरिटी दोनों हाउसेस की जब तक नहीं है तब तक आप पास नहीं कर सकते। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 3 तरीके से होता है। एक होता है नॉर्मल अमेंडमेंट, जिसके अंदर आप डेफिनेशन को हल्का सा चेंज कर रहे हैं, उसमें आप स्पेशल मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउसेस से कर सकते हैं, सॉरी सिंपल मेजोरिटी से। एक होता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट ही करना चाहते हैं, लेकिन स्टेट का उनसे लेना देना नहीं है, तो उसमें आप दोनों हाउसेस की स्पेशल मेजोरिटी से उसको पास करते हैं। और एक ऐसा जिसमें फेडरल प्रिंसिपल्स भी अफेक्ट हो रहे हैं, तो उसमें आप मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट जो लेजिस्लेचर है उनका आपको रेटिफिकेशन चाहिए होता है,
और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो फ्रीली पास माना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें बजट की, तो प्रिविलेजेस हम देख चुके हैं कि क्या क्या प्रिविलेजेस होते हैं, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं इंडिविजुअल क्या क्या है। आप कुछ भी बोलिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपको, लेकिन आपके जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं उनके ऊपर भी हेट प्रिंसिपल लगता है, जिसमें कि आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं जो डिरोगेटरी हो हाउस की सैंक्टिटी के, कलेक्टिव मेंबरशिप के। आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं जो वुमेन को डिरोगेट कर दे, जो जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको करें, या फिर आप एनमिटी बढ़ा दे सोसाइटी के अंदर, ऐसा कुछ बोल के आप नहीं कर सकते। अगर हम प्रोमिनेंट एग्जाम्पल की बात करें तो वी हैव द केस ऑफ श्री प्रवेश साहब सिंह वर्मा, who is an MP of West Delhi, who was caught in such an incident during the time of 2019 election when he spoke something derogatory for the Chief Minister of Delhi, and there was a case also registered on freedom from being a witness। जैसा कि हम देखते हैं सिविल एंड क्रिमिनल केसेस में कि इनको फ्रीडम होती है, ये बोल सकते हैं पुलिस अथॉरिटीज को कि हम विटनेस बने या ना बने। एंड फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, यानी पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूट होने के 40 दिन पहले और पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट खत्म होने के 40 दिन बाद तक इनको अरेस्ट ही नहीं किया जा सकता है, तो ये एक इनको सिविल एंड क्रिमिनल इम्यूनिटी भी प्रोवाइडेड होती है। इसके बाद अगर कलेक्टिव हम हाउस की बात करें तो क्या क्या प्रिविलेजेस हैं कि कोई भी स्ट्रेंजर पार्लियामेंट के अंदर नहीं जा सकता है। अभी अभी हमने देखा कि किस तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच के मामले पार्लियामेंट के अंदर आए, जिसमें कुछ लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर घुसने की कोशिश की। इसके बाद हाउस हैज द पावर टू परमिट और रिस्ट्रेन पब्लिशिंग ऑफ एनी प्रोसीडिंग। तो आप ये जो हाउस का सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो न्यूज एजेंसीज हैं उनको रिकॉर्ड करें। और दिस अ प्रैक्टिकल थिंग दैट वी हैव द एक्रीडेशन नॉर्म्स आल्सो, जो कि 2020 के अंदर पास किए गए, जिसके अंदर MEA से लेकर के और जितने भी हमारे टॉप नॉच डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर खाली एंट्री और एग्जिट सिर्फ एक्रीडेटेड जो न्यूज जर्नलिस्ट है उनका ही होता है। इसके बाद हाउस हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक रूल्स ऑफ प्रोसीजर रेगुलेटिंग द बिजनेस, जिसमें हमने देखा जो चेयरपर्सन होते हैं स्पीकर और चेयरमैन, उनके पास सुप्रीम पावर होती है किस तरीके से रूल बनाएंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस, और वो कोर्ट ऑफ लॉ को क्वेश्चन नहीं करेंगे। हाउस हैज अ पावर टू पनिश फॉर ब्रीच फॉर इट्स प्रिविलेजेस और इट्स कंटेम्प्ट। हमने सबसे पहला एग्जांपल देखा था पंजाब के जो अभी करंट CM है उनका, जिन्होंने शराब पीकर वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर आए थे। दूसरा हमने देखा था उत्तर प्रदेश के एक MP का, जिन्होंने एक सीनियर MP ऑफ राज्यसभा के ऊपर उनके ड्रेसिंग स्टाइल के ऊपर उन्होंने कमेंट किया था, एंड दैट वाज हाईली डेरोगेटरी, जिनके ऊपर क्रिमिनल केस भी अभी रजिस्टर्ड है। इसके बाद हमने अलग अलग एग्जाम्पल कल भी देखे थे, जिसमें कि करंट में ही जो केस चल रहा है दैट इज ऑन दी साउथ ईस्ट दिल्ली MP, जिन्होंने गाली गलौज के मामले उनके ऊपर रजिस्टर्ड है एक दूसरे MP के ऊपर जो कि बिलोंग करते हैं हापुड़ डिस्ट्रिक्ट से। तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस, कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस, ये भी हमने देखा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरह कंटेम्प्ट ऑफ हाउस भी होता है, जिसमें स्पीकर और वाइस प्रेसिडेंट उनके पास पावर होती है कि वो किसी को भी कंटेम्प्ट कर सकते हैं हाउस से फॉर टेम्पररी एंड फॉर नंबर ऑफ डेज। तो इसमें भी मैंने देखा कि 145 MP जो है वो डिस्क्वालीफाई किए गए हाउस से, और उसका सिंपल सा रीजन ये था कि वो हाउस को चलने नहीं दे रहे हैं, डिस्ट्रप्शन ऑफ द हाउस। और ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस ये भी डिफाइंड है कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस रूल्स के अंदर, और कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस भी रूल्स ऑफ बोथ द हाउस। यहाँ पर हम एक केस देख सकते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें कि एक पिटीशन एडमिट की गई थी हैबियस कॉर्पस की केशव सिंह के लिए, जिनको डिटेन किया गया था फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ हाउस यूपी असेंबली के द्वारा और यूपी असेंबली के ऑर्डर पर। और कोर्ट ने कहा कि यूपी असेंबली ने ऑर्डर किया 2 जजों को ताकि वो उनको बेल ग्रांट करें और कस्टडी ले उसके पूरे हाउस की, और एक्सप्लेन किया कि क्यों कंटेम्प्ट के लिए उन्हें पनिश नहीं किया गया है। और ये इसने कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का रूप उठाया। प्रेसिडेंट ने रेफर किया केस अंडर आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट को ओपिनियन के। So now a question we have, why there is absence of legal codification of privileges? So this is my personal opinion that there should be a legal codification of the parliamentary privileges so that the discretion is not misused
by the speaker and the vice president in case of the disqualification of the MPs on the charges of breach of their privileges, जो कि अभी हम routinely देखते हैं दी करंट पॉलिटिकल सिनेरियो। और जो मेंबर्स होते हैं वो उनका मैंडेट होता है ताकि वो अपनी परफॉर्म करें ड्यूटी अच्छे से और जुडिशियल इंटरवेंशन से बचे। फंडामेंटल राइट्स और जुडिशियल रिव्यू है उसमें कंफ्लिक्ट आते हैं जब इस तरीके से पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि पार्लियामेंटेरियंस कहते हैं कि वी हैव द फुल राइट अंडर द फंडामेंटल राइट टू डिस्कस एंड डिबेट एंड टू हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच। लेकिन वो फ्रीडम ऑफ स्पीच कितनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्टेड है वो भी डिफाइंड नहीं है इन द पार्लियामेंट हाउस। आम लोगों के लिए तो वो डिफाइन है कि अगर आप 4 आदमी कहीं खड़े भी जाते हैं सेक्शन 144 के अंदर तो भी आपको उठा लेंगे, लेकिन पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है। तो इफ प्रिविलेजेस आर कोडिफाइड तो इससे पीनल डिसीजन जो है उनको चैलेंज किया जा सकता है हाउस के। जो ब्रीच होते हैं प्रिविलेजेस को उनको जुडिशरी जो है प्रोसीजरल लेवल पे उन पे डिसीजन ले सकती है और फुल इक्विटेबल जस्टिस हो सकता है पार्लियामेंट के साथ भी। और जो आम जनता है जो इतनी मेहनत से और इतनी शिद्दत से इन लोगों को पार्लियामेंट के अंदर भेजती है। सो दिस वी कैन ड्रॉ फ्रॉम। अगर मानसी ओशिक और आप लोगों को भी कुछ बोलना हो तो आप बोल सकते हैं। No, Parvesh. नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसके हेड थे श्री एम वेंकट चलिया। एम वेंकट चलिया एक सीनियर एमपी थे पार्लियामेंट से। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू किया और उन्होंने इस चीज क्वेश्चन को भी उठाया कि क्या प्रिविलेजेस डिफाइन होने चाहिए नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर बात की गई है कि जो हाउस होते हैं वो स्पेशल प्रिविलेजेस और इम्यूनिटी इंजॉय करते हैं और इससे सोवरेनिटी भी पता लगती है लोगों की और कॉन्स्टिट्यूशन की। तो ये जिम्मेदारी है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है वो अपने प्रिविलेजेस को ध्यानपूर्वक निर्वाह करें और इसी के लिए कोडिफिकेशन जरूरी है, क्योंकि जब कोडिफाइड होगा तो जब हमारे यहाँ ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए भी कंडक्ट रूल्स हैं, जब हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी चार्टर रूल हैं, जब हमारे यहाँ जुडिशरी के लिए भी जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस के अंदर भी उनके ऊपर भी जुडिशियल रिस्ट्रेंट की थ्योरी है जो कि जस्टिस बालकृष्णन ने दी थी, तो क्यों पार्लियामेंट के ऊपर ऐसा नहीं है। तो इनका भी कहना ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने काफी बार इस चीज का जिक्र भी किया। पीवी नरसिम्हा राव केस हमारे यहाँ प्रोमिनेंट है, जिसमें एक एमपी थे जो झारखंड से बिलोंग करते थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से। वो ब्राइब लेते हुए पकड़े गए थे इन फेवर ऑफ रूलिंग पार्टी। और इस केस में यही बात निकल कर आई थी कि जो एमपी है जिन्होंने मनी ली तो वो कैन नॉट बी पनिश बाय द जुडिशरी ऑन करप्शन चार्जेस, क्योंकि उन्होंने ऐसा बोल दिया मेरे हाउस का प्रिविलेज है, मैं तो अपनी पार्टी के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा था। इसके बाद रिसेंट एग्जाम्पल हम देख रहे हैं तमिलनाडु असेंबली 2017 में जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कॉन्फिडेंस वोट पास कर दिया और कमेंट इज मेड ऑन द फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट और हाउस कि वो ओवररीच करते हैं अपनी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जिसकी हमने अभी भी बात करी वेरियस एग्जाम्पल के तहत। और मिनिस्टर जो है कई बार हमने ये भी देखा है वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन एंड इवन फॉल्स प्रॉमिस करके चले जाते हैं और गायब रहते हैं। 2013 के अंदर हम देख सकते हैं मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट तमिलनाडु के, तो जिन्होंने इन्फॉर्म किया था हाउस को कि कोका कोला जो कंपनी है, जो एक हमारी बीवरेज कंपनी है, वो अथोराइज नहीं है उसको रिवर वाटर यूज करना और कोई भी लैंड उसको नहीं दी गई है। लेकिन सेम ही डे एफिडेविट जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट का इन द मद्रास हाई कोर्ट उसने एक्सेप्ट किया कि कंपनी को दोनों चीजें दी गई। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कुछ भी बोल देते हैं, फेक प्रोमिसेस करते हैं और ऐसी डिबेट या डिस्कशन करते हैं जो कि अनडिजायरेबल होती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होती है और हम बोल सकते हैं कि अनरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को शो करती है। देन पंडित एम शर्मा केस, जहाँ पर कोर्ट ने ये बोला कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, तो फंडामेंटल राइट ही प्रिवेल किए जाए। लेकिन ये बहुत पुरानी जजमेंट है, तो आज के टाइम पे हम बोल सकते हैं कि देयर शुड बी अ को-हार्मोनियस प्रिंसिपल बिटवीन द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड द फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के नाम पे आप पार्लियामेंट में धो रहे हो तो वो चीज सही नहीं। ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट, तो इसमें हमने देखा कि कौन कौन होते हैं, चेयरमैन होते हैं, डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं, पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन होता है, ये हम बात कर चुके हैं, और स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और पैनल ऑफ चेयरपर्सन होते हैं जो कि लोकसभा के अंदर होते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स वी हैव कवर्ड। स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, टर्म ऑफ ऑफिस जो कि 5 साल होता है। आर्टिकल 95 के अंदर डेप्यूटी स्पीकर का हमने देखा था।
प्रोटेम स्पीकर की भी हमने बात की थी कि जो टेम्पररी मेजर के लिए प्रेसिडेंट उनको नियुक्त करते हैं ताकि नए नए जो एमपी मिनिस्टर आए उनको शपथ दिलाएं और जो सेशन है उनको चलाएं ताकि सभी लोग जो है मेंबर के मिले ओथ और अफर्मेशन दिलाने के लिए इनको बनाया जाता है। और जैसे ही नए स्पीकर का इलेक्शन होता है ये ऑटोमेटिकली प्रोटेम स्पीकर से हट जाते हैं और पावर जो होती है इनकी सेम होती है उस टाइम के लिए। So pretty, I hope till here we have covered. But okay, so thank you so much, and we are having a lack of time, so thank you, and we'll meet tomorrow to the next set of parliamentary.